Hi, hello, friends. Welcome back to Raman tutorial for GK. In today's class, we are going to discuss about the chapter Growth and Development in Education Psychology. And this video is for those who are preparing for their CTET and TET in English and Hindi medium. These are the questions. These are the hand-picked questions from previous exams like CTET and state TETs. And you are watching Raman tutorials. If you are watching for the first time, please subscribe our channel and click on the bell icon. And let's begin with the first question on your screen. In which of the following stages do children become active members of their peer group? This is a question from CTET 2011. निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने साथियों के समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? You have to find out the stage of a life of a person. Here the options are adolescence, adulthood, early childhood and childhood. किशोर अवस्था, adulthood, प्रारंभिक बचपन और बचपन. These are the stages. आपको इन स्टेजेस में किस स्टेज में बच्चे अपने एक समूह बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, वो ग्रुप के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं. द राइट आंसर फॉर दिस इज एडोलेसेंस, किशोर अवस्था. किशोर अवस्था में बच्चे क्या होते हैं, अपने अपने को खुद को ग्रुप के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं. दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद द ग्रुप. सो द आंसर इज option number A, adolescence. Adolescence is the right answer for the question. Let's move on to next question. And I think you might have come across the word peer group. If you are not aware enough with this concept, let me explain this to you. Peer group consists of a same aged individuals who have similar interests and are part of the same social class. For example, a peer group is like a soccer team. Peer group are very influential on the childhood and adolescent social development, with peer group influence being its highest during adolescence. During adolescence, we find that peer group they throw a lot of influence on the child, and it is very quite common for adolescents. And this is very influential. These are the influential groups. We find it, for example, usually children used to play gully cricket and they form their teammates, and that group may be known as peer group. इन हिंदी में सहकर्मी समूह में समान आयु वर्ग के व्यक्ति जो होते हैं वो समान हितों के लिए एकत्रित होते हैं और सामाजिक अपने वो उनके एक सामाजिक बैकग्राउंड जो रहता है वो सेम सा रहता है और वो एक अपने आप को एक टीम बना लेते हैं. फॉर एग्जांपल साकर टीम बोल सकते हैं. एक किशोर अवस्था में क्या रहता है, उनका सामाजिक विकास इस विकास में बहुत ही प्रभावशाली ग्रुप बन जाते हैं. ये जो ये है ना एडोलेसेंस पीरियड में इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है. साथ में हम आगे जाएंगे. दूसरा क्वेश्चन लेंगे. डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस. यू हैव टू मार्क आउट दिस सेंटेंस. डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. दिस इज द स्टेटमेंट and you have to find out the principle behind this statement. This idea is associated with which of the following principle. विकास एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है. ये विचार को आप किससे जोड़ते हैं? अंतर संबंध सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत और बातचीत का सिद्धांत. प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन. These are your options. As you know, here development is seen as a never ending process. नेवर एंडिंग प्रोसेस बोले तो खत्म नहीं होने वाला प्रक्रिया जाने जाते हैं.
इधर आपको कंटिन्यूटी, द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एसोसिएशन दिखाई देता है. So the right answer for this, the principle of continuity. As you know, the development takes place from womb to tomb. This is the general statement we come across, we usually associate with the development. अब आपको मालूम होता है जब बच्चा पैदा होता है उसका अंत तक उसका विकास का प्रक्रिया चालू रहती है. इस वजह से हम निरंतरता का सिद्धांत जो है उसको इससे जोड़ सकते हैं. और आगे के क्वेश्चन जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉय एज खिलौने का उम्र किस स्टेज को हम बोलते हैं? अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, बॉयहुड. दीज आर द ऑप्शंस. किस उम्र के बच्चे टॉय के साथ, उनके खिलौने के साथ खेलते हैं, वो कौन सा एज है आप फाइंड आउट करना बहुत ही जरूरी है. इधर ऑप्शंस आर हियर. आप आप सभी बच्चों के स्टेज से आगे आए हैं. अब आप टीचर्स बन गए. आपको मालूम रहता है बच्चे किन एज में ए टॉय के साथ खेलते हैं. यू हैव टू फाइंड आउट द एज वेयर चिल्ड्रन प्ले विद टॉयज. And the right answer, as you know, the right answer is very easier one for you, and you can find out. It may be early childhood, yes, or right, or boyhood. Which one? Yeah, the right answer is early childhood is the answer. In early childhood, the boys play with the toys. They play with toys, right? Next, move on. Here are the some of the stages of person. For example, let's consider this one. Parental period, prenatal period. Sorry, prenatal period. This period starts when the mother conceives, conception to birth, up to 280 days. Prenatal period, it starts from the conception to the birth. It almost ends up to 280 days, almost up to 9 months. Infancy period usually uh, it starts from birth when the child becomes 14 day old. Actually, birth to 2 weeks. Babyhood, 2 weeks to 2 years. Childhood, 2 years to 12 years. And we divide, we categorize childhood like early childhood, which starts from when the child attains the age of 2 till 6 years. Late childhood we usually associate from 6 year to 12 year, right? Adolescence is 12 to 20 year one. Here we um, categorize again it pre-adolescence and late adolescence. Pre-adolescence starts from 12 to 16, late adolescence 16 to 21. And these are the years. Adolescence nothing but teenage period. And adulthood, which starts from 21 year and ends around 60 to 65 years. Later old age starts. Like this we divide the stages of a person. And you have to remember this one, especially you have to remember childhood. When it starts, early childhood and late childhood are the two things you have to remember. Let's move on to next question. Which of the following is not a characteristic of early childhood? निम्नलिखितों में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? आपको इधर दिए गए विशेषताओं में ऐसा एक विशेषताओं को फाइंड आउट करना जो हम यूजुअली उसे एसोसिएट नहीं करते हैं अर्ली चाइल्डहुड से. प्री गैंग एज, इमिटेटिव एज, क्वेश्चनिंग एज, प्ले एज. ओके, इधर ऑप्शंस है पूर्व गिरोह उम्र, अनुकरणीय उम्र, पूछताछ का उम्र, खेलने की उम्र. और as you know, we early childhood means from 2 to 6 year, right? 2 to 6 year we usually we come across early childhood. We categorize it
from 2 to 6 years. इधर बच्चे we don't associate them with playing, right? Plays, this is not the play age. They form their groups, and they are very imitative in their nature, and they question a lot. They question a lot, but we don't associate them with playing age. They are not very good at playing. खेलने में उनका ज्यादा, खेलने में बोले तो बड़े बड़े खेल में उनका मन नहीं रहता। छोटे छोटे खेल खेलते हैं, टॉयज के साथ खेलते हैं अर्ली चाइल्डहुड में। खिलौनों के साथ खेलते हैं, बड़े बड़े गेम्स, स्पोर्टिव एंथुजियास्टिक गेम्स में नहीं भाग लेते हैं। और साथ में आपको जानना है तो अर्ली चाइल्डहुड का इधर सम कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट इज द की टू ऑल प्रोडक्टिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, एंड इट इज अ पीरियड ऑफ रैपिड डेवलपमेंट। इधर बच्चे जो उनका डेवलपमेंट होता है वो रैपिड रहता है। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉब्लम एज। उनका दिमाग में बहुत सारे प्रॉब्लम का आंसर ढूंढना रहता है। इट इज ऑल्सो नोन एज टॉय एज। वो खिलौने के साथ खेलते हैं और साथ में बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, इसलिए क्वेश्चनिंग एज भी बोलते हैं। वो गैंग बनाने से, वो गैंग बनाने वाला लेट चाइल्डहुड रहता ना, उससे पूर्व गैंग बनाने के लिए सोचते रहते हैं। प्री गैंग एज भी बोलते हैं। दिस इज अ प्री गैंग एज, इट इज अ क्वेश्चन एज, दिस इज अ टॉय एज, एंड इट्स अ known as problem age, and you come across rapid development at this age. These are the some of the characteristics of early childhood. Okay. And in the late childhood period, children understand the conversion of which physical entity. बच्चे ये लेट चाइल्डहुड में भौतिक इकाई बोलते हैं। भौतिक इकाई बोलते तो फिजिकल एंटिटी। भौतिक रूप से किन विचारों पर ध्यान ध्यान रखते हैं? मास, मास बोले तो उसका वेट देखना। मास एंड नंबर, वो वेट भी देख सकते हैं, नंबर भी गिन सकते हैं। नंबर, ऑप्शन सी बोलता है नंबर, संख्या के बारे में जानते हैं। मास, नंबर और एरिया। हाँ, ये मास बोले तो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र के बारे में उनका दिमाग सोच सकता है। ये सभी ऑप्शंस है। कौन सा ऑप्शन को आप चुनते हैं? मेरे हिसाब से आप सभी सोच रहे हैं, आप ऑप्शन डी बोल रहे हैं। यस, दैट इज द राइट आंसर। मास एंड नंबर एंड एरिया, दीज आर द थिंग्स, दीज आर द फिजिकल एंटिटी द चिल्ड्रन सोच सकते हैं। और साथ में जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट टास्क इज नॉट अप्रोप्रिएट टू द लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड में बोले तो ये इधर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, वो उपयुक्त नहीं माने जाते हैं। लेट चाइल्डहुड के डेवलपमेंटल टास्क जो हम लिस्ट आउट करते हैं रिलेटेड टू लेट चाइल्डहुड, उसमें ये अप्रोप्रिएट नहीं है। कौन सा देखेंगे? पहला ऑप्शन है लर्निंग फिजिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स। सामान्य खेलों के लिए जो आवश्यक शारीरिक कौशलता रहते हैं वो सीखते हैं। अचीविंग मस्कुलिन और फेमिनिन सोशल रोल, सोशल रोल अपने जो सामाजिक भूमिका रहती है उसको जानते हैं। वो मर्दानगी रहती है, स्त्रीत्व रहते हैं, उसके बारे में उनका रोल को समझते हैं। ऑप्शन दो बोल रहा है। ऑप्शन तीन है अचीविंग पर्सनल इंडिपेंडेंस, अपने खुद के इंडिपेंडेंस के बारे में सोचते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्र के बारे में प्राप्त करने के लिए आतुर रहते हैं। लर्निंग टू गेट अलॉन्ग विद एज मेट्स, अपने जो सेम एज ग्रुप के बच्चे जो रहते हैं उनके बारे में, उनके साथ घुल मिलने के लिए तैयार रहते हैं। ये है। जो ऑप्शन ठीक नहीं है, डेवलपमेंट टास्क नहीं माने जाता है फॉर लेट चाइल्डहुड बच्चे, कौन सा है बोले तो ऑप्शन बी। वो जो सामाजिक भूमिका रहते हैं, लड़का हो लड़की हो, वो सामाजिक भूमिका उसको वो इस स्टेज में डेवलपमेंटल टास्क में नहीं माना जाता, वो लेट में आता है। वो टीनेज के बाद आने वाला सोशल रोल, जो अपने आप को टीनेज में सोशल रोल को फाइंड आउट करते हैं बच्चे, मगर इस लेट चाइल्डहुड में वो फाइंड आउट नहीं होता, इसलिए ये गलत ऑप्शन है।
देखो, डेवलपमेंटल टास्क ऑफ अ चाइल्डहुड ऑफ लेट चाइल्डहुड पीरियड एज फॉलोज बाय हैविगस्ट, वो 1972 में हैविगस्ट डेवलपमेंटल टास्क के बारे में बोलते हैं। वो बोलते हैं, वो लिस्ट आउट करते हैं, कौन से हैं देखेंगे। लर्निंग फिजिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स, जो ऑर्डिनरी गेम्स जो आवश्यक कौशलता, शारीरिक कौशलता डिमांड करते हैं, वो खेल में व्यस्त रहते हैं और उसका जो नेसेसरी स्किल्स है वो सीखते हैं बच्चे। जैसे कबड्डी, कबड्डी के लिए, क्रिकेट में बॉलिंग करना, बैटिंग करना, वो जो ऑर्डिनरी स्किल्स रहते हैं उसके बारे में सोच सकते हैं इस उम्र में। बिल्डिंग अ होलसम एटीट्यूड टुवर्ड्स वनसेल्फ, अपने वो खुद के बारे में वो अ, ज़्यादा सोचते रहते हैं। लर्निंग टू गेट अलॉन्ग विथ एज मेट्स, अपने जो एज मेट्स रहते हैं, पीयर ग्रुप रहते हैं, वो उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। टीम स्पोर्ट्स के बारे में सोचते हैं। वो टीम के बारे में, खुद के लिए नहीं, पर्सनल से टीम के बारे में वो सोचते रहते हैं इस उम्र में। दीज आर द सम ऑफ द स्किल्स we usually associate with the developmental task related to late childhood. Let's move on to next. The current view of childhood assumes, the current view, बचपन का वर्तमान दृष्टिकोण कौन सा है? Children are similar to adults in many ways. Children are best treated as young adults. Childhood is basically a waiting period. Childhood is unique period of growth and change. आप वर्तमान स्थिति में बचपन माने तो क्या है? बचपन बोले तो क्या है? बचपन का दृष्टिकोण वर्तमान के स्थिति के अनुसार, आपको दृष्टिकोण के अनुसार ये आंसर फाइंड आउट करना होता है। बच्चे कई मायनों में जो बड़े रहते हैं उनके समान चिंतन करते हैं। बच्चों को सबसे अच्छा बोले तो युवा मान सकते हैं। बचपन मूल रूप से एक प्रतीक्षा की अवधि रहती है। बचपन जो रहता है वो परिवर्तन का एक स्टेज है। कौन सा ऑप्शन को आप मानते हैं? कौन सा करंट व्यू से बोले तो राइट आंसर है, childhood is a unique period of growth and development. This is the way. बच्चे क्रिएटिव रहते हैं, वो टीम के बारे में सोचते हैं, वो जो आगे जो प्रॉब्लम आने वाले हैं उसके बारे में सोचते हैं, इसलिए वो वेरी डिफरेंट है। बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टडी करना है तो बेस्ट मेथड कौन सा है? साइको एनालिटिक मेथड, कंपैरेटिव मेथड, डेवलपमेंटल मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड, मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासात्मक विधि और सांख्यिकीय विधि। बोले तो द बेस्ट मेथड्स टू स्टडी ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऑफ एक बच्चा है, उसके बारे में, उसका ग्रोथ डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, वो स्टडी करने के लिए आपका सबसे बड़ा मेथड है, यस यू आर ऑल राइट, डेवलपमेंटल मेथड। ये डेवलपमेंटल मेथड क्या है? विकासात्मक विधि क्या है देखेंगे। देखो, a developmental psychology is a scientific approach which aims to explain growth, change, and consistency through the lifespan. Developmental psychology looks at how thinking, feeling, and behavior change throughout a person's life. This is a developmental psychology. This is a definition of developmental psychology. Developmental psychology में एक बच्चे हो, एक आदमी हो, उसके ग्रोथ कैसा होता है, उसमें चेंजेस कैसे आते हैं, वो कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन होता है थ्रू आउट लाइफ, ये सब के बारे में हम सोचते हैं। वो है टर्म, आप पीएसआरएन को जाने होंगे। पीएसआरएन बोले तो विकास में क्या है? पीएसआरएन बोले तो इधर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मगर मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमरसी, प्रॉब्लम से PSRN, हाँ, दिस इज द राइट आंसर। PSRN बोले तो समस्या समाधान, तर्क और संख्यात्मक जो स्किल्स रहते हैं उसे डेवलपमेंट बोल सकते हैं। और द concept of development task was first used by, this is the last question for the session, this is asked in TN TET in 2011, the concept of developmental task, विकासात्मक कार्य के अवधारणा का पहली उपयोग कौन करे?
The right answer, let's see, Herbert, Hull, Brunner, Havigast. आप सभी जानते हैं डेवलपमेंटल टास्क बोले तो हैविगस्ट आते हैं, वही the right answer for that. Developmental task is a task that arises at or about a certain period in life. Unsuccessful achievement of which leads inability to perform task associated with next period or stage of life. ये डेवलपमेंटल टास्क ये है, ऐसा कार्य है वो जीवन में उस स्टेज में बच्चे को वो टास्क कंप्लीट करते हुए देखने चाहते हैं। वो कंप्लीट नहीं होता तो बच्चे क्या होते हैं, वो अगले टास्क जो अगले स्टेज को जाने के लिए उतना तैयार नहीं है, हम मान सकते हैं। वही विकासात्मक कार्य जाने जाता है, उसका डेवलपमेंट हो गया। उसके बारे में अगले क्लास में और कुछ जानेंगे। तब तक के लिए आप सबको शुक्रिया बोलता हूँ, और अगले क्लास में मिलेंगे और हम ज़्यादा जानकारी सीटेट के एग्जाम के बारे में सीखेंगे। आई होप दिस क्लास विल हेल्प यू। Okay, till then, till next class, bye.